اقسام عدالتوں سے واپس ہونے والے ریفرنسز کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے آدم امین چودھری کیس میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملزم کے خلاف ریفرنس واپس ہو جانے کا مطلب کیس سے اس کی بریت نہیں۔ نیب کورٹ سے ریفرنس صرف دوسری عدالتوں کو منتقل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کو سینے میں تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کو سینے میں تکلیف کے باعث نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شرجیل انعام میمن کے دل کی 2 شریانیں بند تھیں۔ اینجیوگرافی کے بعد اینجیوپلاسٹی کی کر دی گئی، 2 اسسٹ ڈالے گئے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو کلین چٹ دے دی۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت اسپیشل جج سینٹرل نے کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ اور تفتیشی افسر ضمنی چلان سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کے لیے الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت گزشتہ شب 10 بجے ختم ہو گئی تھی۔ الیکشن کمیشن مشاورت کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے محمد اعظم خان کو نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تعینات کر دیا۔ گورنر کی جانب سے محمد اعظم خان کی بطور نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تعیناتی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل نوشتہ دیوار ہے۔ قوم کو انتخابات کا بے صبری سے انتظار ہے، یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ آج قومی اسمبلی سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہمارا سامنا کرنے سے پہلے ہی فرار ہو گئے۔ نون لیگ کا مریم نواز کی وطن واپسی پر ان کا بھرپور استقبال کرنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی وطن واپسی کے حوالے سے لاہور میں پارٹی اجلاس ہوا، جس میں نون لیگ کے اراکان صوبائی اسمبلی شریک ہوئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مریم نواز کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ حکومت نہیں بلکہ متعلقہ ادارے کریں گے۔ مریم نواز 27 جنوری کو پاکستان پہنچیں گی اور 1 فروری سے مریم نواز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم شروع کریں گی۔ نون لیگ انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لے گی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ امید ہے کہ الیکشن کمیشن شریف اور زرداری کے فرنٹ مین کی بجائے بہتر نام کا انتخاب کرے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودھری نے لکھا کہ آرٹیکل A224 الیکشن کمیشن 2 دن کے اندر ان 4 ناموں میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ نامزد کرے گا، جو پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے کمیشن کو بھیجے جائیں گے۔ کمیشن اپنی طرف سے نام نہیں دے سکتا۔ لاہور میں کل سے نان اور روٹی کی قیمت میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر وحید عباسی نے کہا ہے کہ روٹی 16 روپے اور نان 30 روپے فروخت کیا جائے گا۔ فائن آٹے کا 80 کلو کا ٹھیلا 12,000 روپے میں مل رہا ہے۔
शुमाली बलूचिस्तान में कोजक टॉप, पुराना चमन, शिलाबाग और तोबा चकजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान। कोजक टॉप के मकाम पर बर्फबारी के बाइस कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद तरीन सर्दी के बाइस कोयटा चमन शाहरा फिर से मुंसबित हो गई, जबकि कोयटा जियारत शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कौमी इदारे सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4250 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। ज़राई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत गुज़िश्ता तब 10 बजे खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरान वज़ीर आला का फैसला करने का पाबंद है। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर को भी भिजवाई जाएगी। ज़राई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज और कल सेक्रेटेरिएट खुले रखने का फैसला करते हुए मुलाजमीन को ऑफिस आने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन रजा नकवी, अहद चीमा, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज केरा नामजद हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत गुज़िश्ता सब 10 बजे खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरान वज़ीर आला का फैसला करने का पाबंद है। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर को भी भिजवाई जाएगी। ज़राए का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज और कल सेक्रेटेरिएट खुला रखने का फैसला करते हुए मुलाजमीन को ऑफिस आने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन रजा नकवी, अहद चीमा, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा नामजद हैं। पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी पहली मरतबा कागज और कलम के इस्तेमाल के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ होगी। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 1,26,000 टैबलेट्स अमले को दिए गए हैं। मरदमशुमारी का अमल 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाएगा। किस शहर और सूबे की कितनी आबादी, कितने पढ़े लिखे और कितने नाखवानदा, कितने बेरोजगार, कितने बेघर और कितने वसाइल दरकार, इस सब की गिनती के लिए मरदमशुमारी होना लाजिम, लेकिन मरदमशुमारी के अमल में हर बार कोई रखना पड़ना और इल्तिवा का शिकार होती रही है। 7वीं मरदमशुमारी बिलाखिर मार्च में शुरू होगी और इस बार कलम कागज की बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हर घर का एक फर्द अपने मोबाइल फोन नंबर से पूरे घराने का इंदराज करवाएगा। इदारा शुमारियात की टीम घर घर जाकर उसकी तस्दीक करेगी। इदारा शुमारियात का अमला टैबलेट में डाटा फीड करेगा और इस घर को जियो टैग कर दिया जाएगा। मरदमशुमारी के इस अमल से घर, अफराद खाना और इलाके का डाटा इदारे को डाटाबेस में महफूज रखा जाएगा। मरदमशुमारी के लिए 1,21,000 का अमला 1,26,000 मोबाइल टैबलेट्स के साथ काम करेगा। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 1,26,000 मोबाइल टैबलेट्स अमले को दिए जा चुके हैं। मरदमशुमारी का अमल 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाएगा। माहिरीन कहते हैं अमूमी सुकूनत की मरदमशुमारी तरक्याती कामों, मनसूबा बंदी और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा कर सकेगी। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में फैसला जारी करते हुए कहा कि किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से उसकी बरियत नहीं होती। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं।
نیب قوانین میں ترامیم کے بعد احتساب عدالتوں سے کیسز کی واپسی سے متعلق اہم فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ریفرنس صرف نیب کو واپس کیے جانے کا قانون میں تصور موجود نہیں ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ نیب مقدمات کو دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے سے متعلق احتساب عدالتوں کی ہر ممکن مدد کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ نیب نئے حقائق سامنے آنے پر ضمنی ریفرنس بھی احتساب عدالت کی اجازت سے دائر کر سکتا ہے۔ اکاؤنٹس منجمد کرنے کے جاری ہو چکے احکامات بھی اب نئی متعلقہ عدالتیں ہی ختم کر سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سرکاری اداروں میں خصوصی افراد کے لیے مختص کوٹے پر فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ عدالت عظمیٰ کے جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی افراد کے لیے مختص کوٹے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں عدالت نے خصوصی کوٹے پر عمل درآمد کا حکم نامہ تمام سرکاری اداروں کو ارسال کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کو سرکاری اداروں میں ملازمت دینا صدقہ و خیرات نہیں بلکہ ان کا آئینی حق ہے۔ پاکستان میں خصوصی افراد کی تعداد 33 لاکھ سے 2 کروڑ تک ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے نیب کو خصوصی افراد کے لیے 3% کوٹے پر فوری تقرری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری اور نجی ادارے خصوصی افراد کے لیے احساس پیدا کریں۔ خصوصی افراد کے تمام قانونی اور آئینی حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے۔ معاشرے کی ترقی میں خصوصی افراد کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا عام آدمی کا۔ اعظم خان کی بطور نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے لیے اعظم خان کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کی جانب سے گزشتہ روز گورنر KPK کو نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اعظم خان کے نام پر اتفاق کیا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نامزد اعظم خان چیف سیکرٹری سمیت دیگر اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ وہ سابق نگران وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ اعظم خان پیٹرولیم اور مذہبی امور کی وزارتوں کے وفاقی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما پیر امین الحسنات آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق نون لیگ کے مرکزی رہنما پیر امین الحسنات کی PTI میں شمولیت کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، عامر قیانی پر مشتمل وفد امین الحسنات کا خیر مقدم کرے گا۔ منی لانڈرنگ کیس میں FIA نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو کلین چٹ دے دی۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت اسپیشل جج سینٹرل نے کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ اور تفتیشی افسر ضمنی چلان سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت FIA نے سلیمان شہباز کے خلاف چلان عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کے روبرو کہا کہ چلان کو متعلقہ اتھارٹی کی منظوری کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر FIA نے عدالت کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کی کک بیکس کے شواہد نہیں ملے، جس پر جج نے سلیمان شہباز کے وکیل سے سوال کیا، کیا آپ ضمانت واپس لینا چاہتے ہیں؟ جس پر FIA کے تفتیشی افسر نے کہا کہ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے کیس میں ملوث ہونے کی کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی نے عدالت سے ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے سلیمان شہباز کو ٹرائل میں 4 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کو سینے میں تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کو سینے میں تکلیف کے باعث نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز حیدرآباد منتقل کیا گیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ہسپتال لانے پر شرجیل میمن کا طبی معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ صوبائی وزیر کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شرجیل انعام میمن کے دل کی 2 شریانیں بند تھیں۔ اینجیوگرافی کے بعد اینجیوپلاسٹی کر دی گئی ہے، 2 سٹنٹ ڈالے گئے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شرجیل میمن کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے، انہیں 24 گھنٹوں کے بعد گھر آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نئی آرمی چیف کے آنے سے معاملات 50% بہتر ہوئے ہیں، مزید بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا۔ PTI رہنما کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ کے لیے وہ صدر مملکت کو درخواست کرنے جا رہے ہیں۔
आई जी पंजाब की जेर सदारत RPO ऑफिस रावलपिंडी में क्राइम मीटिंग्स और पुलिस लाइंस में रीजन के तमाम DSPs और SHOs के साथ मीटिंग हुई। इस मौका पर IG पंजाब का कहना था कि थानों में आने वाले शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुद को साइलिन की जगह पर रखकर उनकी तकलीफ महसूस करें। यही फार्मूला आजमा कर आप सही मानों में आवाम की जानो माल के मुहाफिज और खिदमत गुजार बन सकते हैं। IG पंजाब का बेगुनाह शहरी को कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस करने पर SHO रवात और DSP सदर को मुअत्तल करने का हुक्म। IG पंजाब का RPO रावलपिंडी को दोनों के खिलाफ सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई की हिदायत। SP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी को वाकये की रेगुलर इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट भेजने की हिदायत की गई है। इख्तियारात से तजावुज और नाकिस तफ्तीश पर साबिक SHO रत्ता अमराल शकील अहमद भी मुअत्तल, जबकि सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। IG पंजाब का रावलपिंडी रीजन के तमाम इजला में CIA सेंटर्स कायम और जदीद खतूत पर इस्तवार करने का हुक्म है। IG पंजाब ने कहा है कि रावलपिंडी में CIA यूनिट में नफरी की तादाद को डबल और जदीद वसाइल फराहम किए जाएंगे। CIA एहलकारों को सहाला कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन और एंटी कस्टोडियन डेथ के हवाले से 6 रोजा तरबियती कोर्स करवाया जाएगा। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल चोरी और हवाई फायरिंग के वाकयात पर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। आमिर जुल्फकार खान का कहना था कि CPO रावलपिंडी ऐसे जराइम में मुलव्विस पेशावर मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन की खुद निगरानी करे। अगर सुपरवाइजरी अफसर की गफलत से किसी जवान की शहादत हुई तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के हल्फ को पूरा न करने वाले अफसरान और एहलकारों को सीट पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। IG पंजाब ने क्राइम के दादोशुमार और पुलिस टीमों की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की है। IG पंजाब ने मजीद कहा कि रावलपिंडी रीजन में मुनज्जम जराइम में मुलव्विस खतरनाक मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाई जाए। मलीर बकरापेड़ी के करीब घर में सिलेंडर फटने से शदीद जख्मी होने वाली खातून जान की बाजी हार गई। हादसे में जाँ होने वाली खातून का नाम शाहीना और उम्र 40 साल है। खातून गैस सिलेंडर फटने से होने वाले धमाके में शदीद जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो जाम भर ना हो सकी। रेस्क्यू जराये का कहना है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 मर्द और 3 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। ज़ेर इलाज जख्मियों में औरंगजेब, पीर मोहम्मद, सानिया और सोनिया शामिल हैं। आपको बताएं कि मलीर बकरा पेड़ी के करीब घर में सिलेंडर फटने से शदीद जख्मी होने वाली खातून जान की बाजी हार गई हैं। हादसे में जान बहक होने वाली खातून का नाम शाहीना और उम्र 40 साल बताई जाती है। खातून गैस सिलेंडर फटने से होने वाले धमाके में शदीद जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो जाम भर ना हो सकी। रेस्क्यू जराये का कहना है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 मर्द और 3 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। जेर इलाज जख्मियों में औरंगजेब, पीर मोहम्मद, सानिया और सोनिया शामिल हैं। लाहौर में कल से नान और रोटी की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर वहीद अब्बासी ने कहा है कि रोटी 16 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। वहीद अब्बासी ने कहा कि फाइन आटे का 80 किलो का थैला 12,000 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आटा महंगा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। आपको बताएं कि लाहौर में कल से नान और रोटी की कीमत में इजाफा करने का ऐलान किया गया है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर वहीद अब्बासी ने कहा है कि रोटी 16 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। वहीद अब्बासी ने कहा कि फाइन आटे का थैला 80 किलो का 12,000 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आटा महंगा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM का मुस्तकबिल नवेश्ता ही दीवार है। कौम को इंतखाबात का बेसब्री से इंतजार है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये बुखलाहट का शिकार हैं। आज कौमी असम्बली से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमारा सामना करने से पहले ही फरार हो गए। रहनुमा PTI का मजीद कहना था कि इमरान खान के खौफ ने इंपोर्टेड हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं। NIH की जानिब से जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,250 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
अब बात करें कुछ मौसम की तो शुमाली बलूचिस्तान में कोज़क टॉप, पुराना चमन, शीलाबाग और तुबा चकजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान है। कोज़क टॉप के मकान पर बर्फबारी के बाइस कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। शदीद तरीन सर्दी के बाइस कोयटा चमन शाहरा फिर से मुंजमद हो गई, जबकि कोयटा जियारत शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में एक बार फिर धुंध ने जोर पकड़ लिया है। शदीद धुंध के बाइस हद निगाह मुतासिर होने से कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जड़ावाला तक और मोटरवे M11 महमूद बूटी से शाहिदरा काला खताई इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से हिनर मीनार तक, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे को भी महमूद बूटी से काला खताई इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर जहां नौजवानों के लिए रन फॉर लाइफ के उन्वान से मेगा गैदरिंग और मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। कन्वेंशन सेंटर जहां नौजवानों के लिए रन फॉर लाइफ के उन्वान से मेगा गैदरिंग और मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी जनाब फैसल करीम कुंडी थे। मैराथन में 2 फेस में रेस हुई, एक रेस में लड़कियों जबकि दूसरे फेस में लड़कों ने हिस्सा लिया। तुलबा का कहना था कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ के साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी होती है, इसीलिए हमें रेस में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे मेगा इवेंट के लिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों को इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। लड़का भी नहीं है, एक लड़की भी पार्टिसिपेट इसमें करके कुछ ना कुछ कर सकती है। ये गेम्स में बहुत अच्छी है, ये माशाल्लाह रेड ब्लैक बेल्ट है टेक्वांडो में और स्विमिंग में एक्सपर्ट है। आज ये मैराथन कंपटीशन था और रेस का, और हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। जबकि उस्तादा का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियों से तुलबा को सेहतमंद रहने में मदद मिलेगी। ये तो अवेयरनेस है, ये लाजमी होनी चाहिए। बल्कि अव्वल तो मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने थोड़े से कम स्कूल्स आए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट, और अभी भी थाउजेंड्स के हिसाब से हैं माशाल्लाह, 5000 प्लस हैं, लेकिन ये और ज़्यादा होने चाहिए। बच्चों में हमारे में बहुत जोशो खरोश है, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, वो सारी उभर के सामने। मैराथन में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लिया का डिवीजन बनना ख्वाब बन के रह गया। लिया डिवीजन बनाओ तहरीक सोशल मीडिया पर जोर पकड़ गई। लिया के मेंबरान असम्बली के दावे धरे के धरे रह गए। लिया डिवीजन मेंबर बनाओ तहरीक के जिले रहनुमा तारिक महमूद पहाड़ की सहाफियों से मुलाकात और लिया डिवीजन बनाओ के हवाले से अहम मीटिंग भी की गई। मजीद इस पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लिया का डिवीजन बनना एक ख्वाब बन के रह गया है। लिया के जो सियासतदान थे अब वो घरों को लौट चुके हैं, लेकिन लिया जो है वो डिवीजन नहीं बन सका। यहाँ पर जो है लोगों की जानब से, शहरियों की जानब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि लिया को डिवीजन बनाए। ये तहरीक जो है सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई और जोर पकड़ गई, लेकिन लिया जो है वो डिवीजन ना बन सका। मेरे साथ इस वक्त लिया डिवीजन बनाओ तहरीक के रहनुमा लिया जो है तारिक महमूद पहाड़ साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि सर आप ये बताएं कि लिया डिवीजन बनेगा या नहीं बनेगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया एक तारीखी अहमियत का हामिल शहर है, जो कि एक वक्तों में मियाँ वाली और DI खान की कमिश्नर भी रहा है, और उसके बाद इसको मुजफ्फरगढ़ और अब ये जो है ना DG खान के साथ मुंसलिक है बतौर ज़िला के। यहाँ पे मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे ये जो मेंबरान असम्बली थे, इन्होंने एफर्ट्स नहीं की। हालांकि ये ज़िला जो है बखर वाले भी यही चाह रहे थे, कोटद्दू वाले की भी यही ख्वाहिश थी और तौसा वालों की भी यही ख्वाहिश थी कि लिया ही डिवीजन जो बनना चाहिए, और लिया ही उस मिड में आता है, दरमियान में आता है, जो सूटेबल है बखर के लिए, कोटद्दू के लिए और तौसा शरीफ के लिए। तो लेकिन इसके बावजूद आप इनकी नाअहली देखें, इन अरकान असम्बली जो साबिक अरकान असम्बली थे हमारे, उनकी नाअहली की वजह से, उनकी सुस्ती की वजह से ये डिवीजन बनता बनता रह गया है। लेकिन लिया डिवीजन बनाओ तहरीक जो है वो हम बता देना चाहते हैं कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक अपना काम खत्म हम नहीं करेंगे जब तक लिया को डिवीजन नहीं बना दिया जाता। लिया डिवीजन तहरीक जो है आज जोरों पर है और हम इसके लिए अगली सेशन तक भी इंतजार करेंगे। अगले सेशन में भी जो है ना हम लाहौर में भी धरने देंगे जाके,
और पूरे पंजाब में भी हम धरने देंगे और लिया को डिवीजन बना कर रहेंगे। शुक्रिया जी बिल्कुल, जो साबिक अरकान असम्बली थे उनकी जानिब से बार बार ये लोगों को बताया जा रहा था कि हम लिया डिवीजन बनाने के लिए वेलकम बैक। एनएफ की मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ एनएफ का क्रैकडाउन जारी है। पेशावर है हयाताबाद रिंग रोड के करीब मुख्तलिफ स्कूलों में मनशियात सप्लाई करने वाले खैबर के रिहायशी 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 4 किलो 890 ग्राम चर्स बरामद। सवाबी टूल प्लाजा के करीब ट्रक से 50 किलो 400 ग्राम चर्स और 15 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद कर ली गई है। चित्राल और अपर दीर के रिहायशी 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पेशावर से लाहौर मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयां की गई। काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब कार से 49 किलो 200 ग्राम चर्स और 31 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पेशावर का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। रावे टूल प्लाजा के करीब कार से 19 किलो 200 ग्राम चर्स और 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की गई है। चारसद्दा और नशहरा के रिहायशी 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गई हैं। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर नाके लगाकर 35,700 लीटर दूध चेक किया गया। 1,700 लीटर दूध तल्फ दूध के नमूनों में पानी और केमिकल्स की मिलावट पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि मुजरे सेहत दूध सप्लाई करने पर 3 सप्लायर्स को 55,000 रुपए जुर्माना किया गया है। मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज का मजीद कहना था कि खुराक के कारोबार में जालसाजी करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां की गई हैं। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर नाके लगाकर 35,700 लीटर दूध चेक किया गया। 1,700 लीटर दूध को तलफ कर दिया गया, जबकि दूध के नमूनों में पानी और केमिकल्स की मिलावट पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि मुजरे सेहत दूध सप्लाई करने पर 3 सप्लायर्स को 55,000 रुपए जुर्माना किया गया है। मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज का मजीद कहना था कि खुराक के कारोबार में जालसाजी करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। एबटाबाद के इलाके तनावल में आए रोज कीमती जानों का ज़िया होने लगा। रेस्क्यू 1122 का टेंडर होने के बावजूद मुंतखब क़यादत काम ना करवा सकी। कीमती जानों की ज़िया की रोकथाम के लिए एडवोकेट इसाक ज़िक्रिया ने रेस्क्यू 1122 सर्विस फौरी तौर पर फराहमी का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक तहसील नाज़म एबटाबाद एडवोकेट मोहम्मद इसाक ज़िक्रिया। तनावल में आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, सड़क की हालत कुछ ठीक नहीं है और रेस्क्यू 1122 की जो सर्विसेज हैं वो भी वहाँ पर फराम नहीं की जा रही। ये क्या सारी सूरत हाल बनी हुई है, जानते हैं इसाक ज़िक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सूबाई हुकूमत ने मुतालिका MPA साहब ने शेरवान सिविल अस्पताल का इफ्तिताह तो कर दिया कागज़ों में, और सारा कुछ ही कागज़ों में होता चला आ रहा है। और दूसरा जो है, आप देखें 1122 पूरे एबटाबाद में फुली फंक्शनल है डिवीजनल हेडक्वार्टर पर। उसकी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है उसका टेंडर हो चुका है। लोअर तनावल में अलग से उसका एक ऑफिस बनना है जहाँ पे एम्बुलेंसेज और ये सारी चीज़ें खड़ी होंगी। लेकिन अवामी नुमाइंदगी न होने की वजह से, या आप कह लें कि नशिस्तों पर नाअहल लोगों के मुलाजमान होने की वजह से, अब वहाँ पर जिस बिल्डिंग का टेंडर हो चुका है उसका भी काम शुरू नहीं हो सका। आए रोज हादसात में मामूली जख्मी होने वाले जो हैं उनको एबटाबाद यूब मेडिकल कम्प्लेक्स लाना पड़ता है। तो जो आपको पता है 1122 की कंप्लीट सर्विस ना होने की वजह से मसाइल का शिकार हैं। पिछले आपको देखा होगा पिछले चंद दिनों में नौजवान बाइक हादसात में जो वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। जब 1122 की बिल्डिंग अनाउंस होने के बाद, उसका टेंडर जारी होने के बाद फिर भी काम ना शुरू करना, मेरे ख्याल से ये अवामी नुमाइंदों की सबसे बड़ी नाअहली है, जिस पर हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि एबटाबाद के साथ साथ बिलखुसूस तनावल में जिस तरह खानपुर में बिल्डिंग बनाई गई है, दूसरी तहसील्स में बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, 1122 की बिल्डिंग जिसका टेंडर हो चुका है
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज विर की हिदायत और एसएचओ रावी रोड अदील अंजुम के हुक्म पर चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी मोहम्मद कदीर की अपनी टीम के हमरा मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कानून की मुताबिक कार्रवाई की गई है। तर्जुमान एसपी सिटी मोहम्मद रियाज के मुताबिक मुलजिमान लाहौर में चपटा मारने जैसी वारदातों में भी मतलूब थे। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जिस तरह से मोटरसाइकिल चोरों की बात की जाए तो शहर लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले दो मुलजमान न सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी करते थे बल्कि गन पॉइंट पर जो बटा मारकर लोगों से मोबाइल फोन और नकदी भी छीन लेते थे। जुबैर उर्फ जो है वो बिलाली इसका नाम है और इसका साथी जो है वो दोनों मुलजमान को एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज विरक की हिदायत के मुताबिक और एसएचओ रावी रोड अदील अंजन के हुक्म पर इंचार्ज जो है वो सब्जी मंडी जो है वो चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी मोहम्मद कदीर ने अपनी टीम के हमरा रेड करके गिरफ्तार किया। दोनों मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। तकरीबन 20 से जायद मुकदमात इससे कबल भी इसके ऊपर दर्ज थे, जो कि लाहौर में जबट्टा मारकर लोगों से मोबाइल फोन भी छीनता था और रकम भी छीनता था। खासकर अगर मास्टर की का इस्तेमाल देखा जाए तो लाहौर में मास्टर की चाबी जो है वो उसका इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। जिस तरह प्लाजों के बाहर, गलियों के बाहर, जो मोहल्लों के बाहर जो मोटरसाइकिलें खड़ी होती थी, पहले उनकी रैकी करते थे और ये उसके बाद मोटरसाइकिलें चोरी करके अपने घर ले जाते थे और वहां पे जाके इसके पुर्जा जात अलग अलग करके चोर मार्केट में फरोख्त कर देते थे। जिस तरह से बलालगंज है, यहाँ पे चोर मार्केट है, बहुत सारे चोर जो है वो यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी फरोख्त करते हैं। तो उसी पर दो मुलजमान जो गिरफ्तार किए गए हैं चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी मोहम्मद कदीर की जानिब से, ये भी जो है वो सामान चोरी करके जो है वो वहां पे फरोख्त करते थे। मोटरसाइकिलें नई जो थी उनको खोल दिया जाता था। आजकल मोटरसाइकिलों की कीमत भी जो है वो आसमान से बातें कर रही है। कोई मोटरसाइकिल जो है वो 125 2 लाख रुपए का है और 70 मोटरसाइकिल तकरीबन 2.25 लाख रुपए में जो है वो दस्तयाब है। लेकिन उसके बावजूद ये मास्टर की का इस्तेमाल करते थे और मोटरसाइकिलें चोरी करके ले जाते थे। इब्तदाई तफ्तीश में चौकी इंचार्ज से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था इनके कब्जा से जो है वो मोटरसाइकिलें भी 8 से 10 जो बरामद की गई हैं, नाजायज असला भी बरामद किया गया है। शहरियों को ये फायरिंग करके जख्मी भी करते थे और ये लाहौर की सड़कों पर दिन रात वारदात करते थे। खासकर अगर देखा जाए शफीकाबाद, लारी अड्डा, बदामी बाग, मिसरी शाह, शाद बाग, मस्ती गेट, यक्की गेट और दीगर सिटी डिवीजन के इलाकों में ये चोरी और डकैती की वारदात करते थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जा से जो है वो 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, असला भी बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था जो है वो डीएसपी शफीकाबाद को और एसएचओ को टास्क दिया गया था रावी रोड को। एसएचओ रावी रोड ने एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर मोहम्मद कदीर की ये ड्यूटी लगाई कि मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जबकि इनका जो तीसरा साथी है उसकी तलाश में जो है वो चौकी इंचार्ज जगह जगह छापे मार रहे हैं। मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये इससे कबल भी जेल रह चुके हैं और जेल के बाद जो है वो बाहर आने के इसके बाद ये डकैती की वारदात दोबारा करना शुरू कर दी। इन्होंने मास्टर की बनवाई हुई थी, जो कि मास्टर की किसी भी ऐसी जो है वो चाबी कही जाती है कि जो किसी भी ताले को जो है वो लग जाती है। खासकर गाड़ियों मोटरसाइकिलों को जिस तरह से कट होते हैं उनको में जो है ये फिट हो जाती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल खुल जाती है। अमूमन चोरी की वारदात ये इस तरह से करते थे कि कोई भी शहरी बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके पैदल अंदर गया तो उसके पीछे पीछे ये बाजारों में जाते थे और ये हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हुए, मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिल खोल लेते थे। जैसे ही मोटरसाइकिल खुल जाती थी तो अपने साथी को बजरिया टेलीफोन ये वापस बुला लेते थे, वो अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाते थे और इनके घर में जो है वो एक ऐसा सामान भी मिला जो मोटरसाइकिलें खोलने के काम आता था। जिस तरह से रेंच, पेचकस, पाने वगैरह जो है वो चौकी इंचार्ज ने बरामद किए हैं और बहुत सारा ऐसा सामान है जो लाखों रुपए मालियत का मोटरसाइकिलों का अलग अलग, जिस तरह से मुर्गाड है, हैंडल है, टैंकी टापे हैं और जो है वो टायर वगैरह, फुटर्स वगैरह जो है वो भी बरामद किए गए हैं। ये माल मसरूका कहलाया जाता है जो कि शहरियों का होता है। उसके बाद जिन जिन इलाकों में मुकदमात ऑलरेडी पहले दर्ज थे उन जाके जगहों की निशानदेही की गई और वहाँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के नोटिस में लाया गया कि आपके मुलजमान जो है वो रावी रोड पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके जो है अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताहाल अभी आज उनका जो है वो रिमांड हासिल किया जाएगा। मजीद इनसे वारदातों की भी ज्यादा तवक्कुआत की जा सकती है। वसीम साबिर, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। अंजुमन ताजरान जल्लो मोड़ की जानिब से बत्ताखोरों और कब्जा माफी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अंजुमन ताजरान जल्लो मोड़ के सरपरस्त आला राशिद करामत अली भट्ट ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि जल्लो मोड़ से ताजरों और आवाम के लिए सर्द दर्द बनने वाला वादू ग्रुप पुलिस पर भी भारी है। पूरे खानदान पर भत्ता लेने की FIR दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान सरेआम घूम रहे हैं। 1 माह के अंदर पुलिस ने दस्तो गिरबान होने की 2 FIR दर्ज की, लेकिन पुलिस ताहाल कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आती है।
अंजुमन ताजरान की जानिब से भत्ता माफिया वादू गैंग के खिलाफ निकाली गई रैली में CCPO लाहौर से अपील की गई है कि हमें भत्ता माफिया से तहफ्फुज़ फराहम करवाया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हम में इंसाफ न दिया गया तो हम CCPO दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना देंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। सूबाई मुहतसब पंजाब की जानिब से आने वाले केसेस पर शिकायत, अजाला और रद्द-ए-अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल कमिश्नर आरिफ अब्दुलसलाम, ADC जी नाजिया मोहल, ACR सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी, ADCR शेखपुरा सरमद अहमद, AC फिरोजावाला उस्मान जलीस और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम DCs ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की है। मौजूद सूबाई मुहतसिब पंजाब की जानिब से आने वाले केसेस पर शिकायत अजाला पर तफसीलन जायजा लिया गया है। इजलास में एडिशनल कमिश्नर आरिफ अब्दुल सलाम, ADC जी नाजिया मोहल, ACR सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी, ADCR शेखुपुरा सरमद अहमद, AC फिरोजावाला समेत दीगर ने शिरकत की है। लाहौर डिवीजन में कुल 5 केसेस है, लाहौर का 1 और शेखुपुरा में 4 केसेस ज़ेर इल्तवा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने जो डेडलाइन दी है उसके मुताबिक जो 1 हफ्ते में केसेस है उन्हें हल किया जाएगा। हर तमाम इजला के DCs जो है सूबाई मुख्तलिफ केसेस की शीट के कमिश्नर लाहौर ऑफिस भेजेंगे और मुख्तलिफ दफ्तर के केसेस में मुफाते आमा के लिए अहम तरीन है तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की कि मौजा बाट के लिए दरख्वास्त वापस हो चुकी है, मगर मजमून दरख्वास्त मुफाते आमा में मौजा बाट के मुकर्ररा करता DC रेट पर तकाजे जो है वो पूरे किए जाए और इस हवाले से जो है जल्द से जल्द रिपोर्ट मुरतब की जाए और हर माह में जो है एक जो है इजलास मुनक्किद किया जाएगा जिसमें सारे जो है केसेस को देखा जाएगा। जी जुनेद अशरफ, आपने तफसीलें लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएंगे DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत लाहौर के तमाम डायरेक्टर्स और एक्सीएन का हफ्तावार इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तरक्याती स्कीमों, रिजल्टिंग शेड्यूल, गैर कानूनी कनेक्शंस, पानी के ज़िया रोकने का तफसीली जायजा लिया गया। आपको बताएं कि DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत लाहौर के तमाम डायरेक्टर्स और एक्सीएन का हफ्तावार इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तरक्याती स्कीमों, रिजल्टिंग शेड्यूल, गैर कानूनी कनेक्शंस, पानी के ज़िया रोकने का तफसीली जायजा लिया गया। आपको बताएं कि DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत लाहौर के तमाम डायरेक्टर्स और एक्सीएन का हफ्तावार इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास में तरक्याती स्कीमों, रिजल्टिंग शेड्यूल, गैर कानूनी कनेक्शंस, पानी के ज़िया रोकने का तफसीली जायजा लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये बिल्कुल ऐसे ही है। DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत वासा हेडक्वार्टर में वासा का इजलास मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में लाहौर के तमाम डायरेक्टर्स एक्शन साहिबान ने शिरकत की है। इजलास में तरक्याती स्कीमों, डिसल्टिंग शेड्यूल, गैर कानूनी कनेक्शंस, पानी के ज़िया को रोकने का तफसीली जायजा लिया गया है और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले टाउन्स की कारकर्दगी को भी DMD ने सराहा है और तमाम डायरेक्टर्स को डिसल्टिंग शेड्यूल को मॉनिटर करने की भी हदायत जारी की हैं और तमाम तरक्याती स्कीमों में काम की रफ्तार को तेज करने की भी हदायत की है। इसके साथ साथ जो तरक्याती स्कीमों के अहदाफ मुकर्ररा वक्त में भी मुकम्मल करने के जो है अहकाम सादर फरमाए गए हैं और तमाम गैर कानूनी कनेक्शन के गिर्द घेरा तंग किया जाए। DMD वासा ने सख्त कहा है जो बिल की अदायगी नहीं करते, जो डिफॉल्टर हैं, जिनके वाजिबुल आद काफी ज्यादा हैं, लाखों में हैं, उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाए और साथ ही साथ उनसे रिकवरियों का अमल जो है वो भी जारी और सारी रखा जाए। जी आजम भट्ट, आपने तफसीलें लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। PHC में गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। मुबैना तौर पर ग्रेड 15 के ग्राफिक डिजाइनर शाहिद डार और आयशा सरवर को खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती किया गया। दस्तावेजी सबूत ने गैर कानूनी भर्ती का भांडा फोड़ दिया। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुलेमान शाह से। जी सुलेमान शाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, PHC में गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। मुबैना तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता और मैट के बरक्स शाहिद डार और आयशा सरवर को ग्रेड 15 में भर्ती किया गया।
जबकि ज़राए के मुताबिक साबिक डायरेक्टर जनरल नाहिद गुल बलोच और साबिक डायरेक्टर एडमिन की तरफ से इन भर्तियों को गैर कानूनी करार दिया गया था। मुबैना तौर पर ग्राफिक डिजाइनर की भर्ती के लिए 2011 में अखबार में इश्तिहार दिया गया था। इश्तिहार के मुताबिक भर्ती के लिए 25 से 30 साल तक की उम्र जो हद है मुकर्रर की गई थी, जबकि भर्ती के वक्त शायद की उम्र 41 साल थी। अखबार के इश्तिहार के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए 1 साल का डिप्लोमा और कैरियर में 3rd डिवीजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुबैना तौर पर इसके बरक्स इस वक्त के डायरेक्टर एडमिन रियाज अहमद शाद ने शाहिद डार और आयशा सरवर को इंटरमीडिएट में 3rd डिवीजन होने के बावजूद मेरिट के खिलाफ गैर कानूनी तौर पे गेट 15 में भर्ती कर लिया, जबकि दोनों के पास ग्राफिक डिजाइनर का डिप्लोमा भी ना था। मैं आपको मजीद बताना चाहूँ कि 2015 में साबिक डायरेक्टर एडमिन मुरिया रशीद ने शाहिद डार और आयशा सरवर दोनों को बगैर दस्तावेजात चेक किए बगैर रेगुलर कर दिया, जबकि साबिक का डीजी नाहिद गुल बलोच ने अपने नोट में इस भर्ती को गैर कानूनी करार दिया था। जी सलमान शाह, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 6वां रोज जारी है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम की 5वीं रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ, DDHOs, एरिया इंचार्ज, UCMOs समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी मरहला जारी है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के 5वें रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ, DDHOs, एरिया इंचार्जेस, UCMO समेत दीगर ने शिरकत की। डीसी लाहौर मोहम्मद अली को 5वें रोज की पोलियो मुहिम की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। 5वें रोज पोलियो मुहिम में 3,83,448 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया कि पोलियो मुहिम के 5 रोज में मजमूई तौर पर 20,38,132 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 38 रिफ्यूजल केसेस में वालिदैन को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाए गए। पोलियो मुहिम का आखिरी मरहला भरपूर तरीके से जारी रहेगा। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने लाहौर में पोलियो मुहिम को हर तरह से कामयाब बनाने के लिए शहर के बड़े शॉपिंग मॉल्स में पोलियो फिक्स टीमें तैनात करने का फैसला किया है। शॉपिंग मॉल्स पर पोलियो डेस्क कायम कर दिए गए हैं। पोलियो वर्कर्स शॉपिंग मॉल्स में आने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। डीसी लाहौर का कहना था कि ये पोलियो पॉइंट्स इंपोरियो मॉल, CGH, पैकेजेस मॉल, कैंट मेट्रो स्टेशन, शादरा मॉल, फूड स्ट्रीट, वाल सिटी में कायम किए गए हैं। बरकत मार्केट, आमना मॉल, रेलवे लिंक स्टेशन और लिबर्टी मार्केट में कायम किए गए हैं। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ भरपूर ताउन का बैतुल्लाह शरीफ में एक ऐसी चिड़िया की वीडियो तेजी से मकबूल हो रही है जिसमें नन्ही चिड़िया तिलावत कलाम पाक सुनने में मशगूल नजर आती है। सऊदी सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने वाली वीडियो में नन्ही चिड़िया कुरान मजीद फुरकान हमीद पर बैठकर तिलावत कुरान मजीद सुन रही है, वहीं हरम शरीफ की अजान को भी सुन रही है। सोशल मीडिया सारिफीन इस दिलफरेब मंजर से खूब महसूस हो रही हैं। आपको बताएं कि बैतुल्लाह शरीफ में एक ऐसी चिड़िया की वीडियो तेजी से मकबूल हो रही है जिसमें नन्ही चिड़िया तिलावत कलाम पाक सुनने में मशगूल नजर आती है। सऊदी सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने वाली वीडियो में नन्ही चिड़िया कुरान मजीद पर बैठकर जहां तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनने में मशगूल है, वहीं हरम शरीफ की अजान को भी सुन रही है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।